Hello friends, welcome on the channel Chemistry with Vanshika. So as you have seen in the thumbnail that today we will discuss about very important questions of physical chemistry of BSc third semester. So in this video we will discuss each and every topic which is very important for your exam perspectives. So without wasting time, let's start. सबसे पहले डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में है, तो उसका वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके उन्हें स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वन इज दी सिस्टम, सराउंडिंग, boundary. These are the important topics which you have to remember and which you have to read about in the thermodynamics chapter. Okay, so first one is the system, second one is the surroundings, boundary, open system, closed system, isolated system, homogeneous system, heterogeneous system, extensive and intensive property. Thereafter isothermal process, isobaric process, isochoric process, adiabatic process and reversible process. You must know all these definitions, all these terms to understand very well the chapter thermodynamics. Okay, so now let's moving towards the short questions which are asked in your exams. So friends, most of the times the definition of cell constant has been asked in exams. तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन. ये आपकी 2 मार्क्स में जो वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं उसमें कभी कभी पूछ ली जाती है. सो यू मस्ट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल कांस्टेंट. देयर आफ्टर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ट्रिपल पॉइंट, ट्रांजिशन पॉइंट, फ्री एनर्जी और वर्क फंक्शन. Next topic which is that phase, component, degree of freedom, and thereafter entropy or standard entropy you can say, and heat of reaction, heat of formation, heat of combustion, heat of transition, and very important topic which you have to remember in the chapter thermodynamics is that थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बहुत बार क्वेश्चन में आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल. नाउ सम अदर क्वेश्चंस लेट्स डिस्कस. तो इन सारे क्वेश्चंस पे भी आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है एग्जाम्स में. तो you must make sure that you have to prepare all these questions very well and practice more and more of all these questions. So the first question is that which is important, that is what do you understand by pH value or H plus concentration. ये सारे ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन ओवर हियर इज दैट डिस्कस द नर्स्ट हीट थ्योरम. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. बहुत बार एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हर 2 ईयर्स में ये रिपीट होता है, 1 to 2 ईयर्स में. तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. नर्स्ट हीट थ्योरम. ओके, एंड देयर आफ्टर व्हाट इज सेल कॉन्स्टेंट एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड. You have to prepare this one also. And next question which is that difference between electrolyte or galvanic cell. Okay, and write a short note on EMF of the cell and its measurement. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हीट ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन. बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन भी आपका, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इसे भी. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दैट एक्सप्लेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COONA सोडियम एसिटेट इज alkaline and aqueous solution of sodium chloride is neutral. So you have to give reason of this one why. And now let's moving further. सो ये आपका यूनिट 4 के फेज इक्विलिब्रियम आपका एक यूनिट 4 चैप्टर में होगा. यूनिट 4 में आपका एक चैप्टर है फेज इक्विलिब्रियम. सो उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस जो बहुत ही बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में और बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके इसमें फेज इक्विलिब्रियम में. लेट्स सी. वाटर सिस्टम, बहुत ही अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है इसे. देयर आफ्टर सल्फर सिस्टम. आपके सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन योर एग्जाम्स, I have included all those topics in this video. Okay, so just you have to make sure that you will have to prepare all these topics very well. Next question which you have to prepare is that FeCl3 system.
देयर आफ्टर बफर सोल्यूशन. बफर सोल्यूशन पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके, लेट्स सी. व्हाट आर द बफर सोल्यूशन, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है इसे. व्हाट आर द बफर सोल्यूशन, एक्सप्लेन बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर. एंड दूसरी तरीके से कैसे पूछा, एक और क्वेश्चन इसी बफर सोल्यूशन पे बेस्ड आता है आपका. हाउ विल यू डिटरमाइन द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक एंड बेसिक बफर, एक्सप्रेस इट्स इक्वेशंस. Okay, next question which has been asked, that is concentration cell with its types. concentration cell क्या होता है और उसके types क्या होते हैं वो भी आपको पूछ लिया जाता है, तो you have to prepare this one also. Thereafter Carnot cycle, very important topic. कार्नोट साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. देयर आफ्टर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है. देयर आफ्टर हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल. हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइल अल्कोहल क्या होता है, यू हैव टू प्रिपेयर दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस. आपको ये सारे टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. देयर आफ्टर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन दीज कंडक्टेंस. इन सब की कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, इसे भी आपको साथ ही साथ प्रिपेयर करना है. देयर आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द कार्नोट साइकिल इज दैट व्हाट इज कार्नोट साइकिल, ये पूछा जाता है आपसे. एंड देयर आफ्टर डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपको एग्जाम्स में पूछा जा चुका है आपके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मेक श्योर दैट यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल. व्हाट आर द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है आपको ये एक्सप्लेन करना है और ये सारे जो टर्म्स हैं उन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट वन इज दैट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. thereafter salt of weak base and strong acid, salt of strong acid and strong base. So all these questions are of phase equilibria. Some more questions let's discuss. So here this one is the numerical portion in which you have to find the heat of combustion of ethanol is आपको given क्या है, heat of combustion of ethanol दे रखा है 330 kilocalorie, and if heat of the formation of carbon dioxide and water respectively, then you have to solve this one. Thereafter calculate heat of formation of ethanol. What you have to calculate, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है. एंड देयर आफ्टर आपको क्या कैलकुलेट करना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल. इथेनॉल का फॉर्मेशन की क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल आपको कैलकुलेट करना है. एंड सम मोर क्वेश्चंस आर दैट हेस लॉ. हेस लॉ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको. और इसके 4 एप्लीकेशंस विद 4 एप्लीकेशंस ये पूछा गया है आपसे एग्जाम में कि आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज हेस लॉ एंड एक्सप्लेन इट विथ 4 एप्लीकेशंस. तो ये दोनों ही चीज़ें आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है. देयर आफ्टर व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. And then explain Lee-Chatelain principle along with its application. You have to study Lee-Chatelain principle क्या होता है और उसके applications क्या होते हैं. You have to prepare this one. Thereafter Carlosh law. What is Carlosh law? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है. सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस वन ऑल्सो. Clausius-Clapeyron equation. Okay, Clausius-Clapeyron equation, Carlosh law and distribution law. Last one is transport number. So if you will prepare all these topics very well and good, then definitely you will score a very good marks in your exams. So all the best for your exams. Thank you.